Fine. So good morning, Muskan. Good morning. So new chapter is there. Okay. Now judiciary is there. Judiciary, we have got three things. One is legislature, one is executive, one is judiciary. Legislature, they used to, make the law. Right. बहस होती है, you know that how the law is going to make, we have already done it about this. So they have to. These, when they make the law, they send it, used to send it to the executive. Execute means to execute, उसको लागू करना. For example, कल principal कहते हैं कि chairman कहते हैं कि इस second Saturday will be off. From every Saturday, second Saturday will be off. So they have a कानून को ठीक है उन्होंने कहा ठीक है principal. What will he will not go and one by one to the teacher, right? He will to the principal. Principal said that one of your junior, they said कल या प्राइवेट साहब को सभी के मोबाइल पर डाल दो, from second Saturday it will be off. Everybody knows. सभी स्टूडेंट के पास पहुंच गया तो second Saturday. So one is एक ने कानून बनाया, एक ने लागू, or one is there. The teachers are going to think that every student should know that from onwards, second Saturday is going to off. So they have already, these are the duties. See, when the law is there, law then it is going to be executed. They used to execute it, और उसके बाद execute होने का judiciary देखती है कि कोई इस कानून को ना. When you are driving a car or driving a bike, you should have a license. This is law, isn't so? And if there is no license, then there is a challan. That is a judiciary. You got it? Now, okay. Many times courts are seen only as arbitraries in dispute between the individuals or the private parties. But judiciary perform some political functions also. Judiciary is an important organ of the government. Judiciary is a very important organ of the government. Let me tell you one thing. Judiciary is very much important organ of the government, but the government never interferes in the judiciary. Judiciary is absolutely independent. और जुडिशरी के ऊपर कोई भी नहीं है. जुडिशरी के ऊपर कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं. So nobody is allowed to interfere in the judiciary. Am I clear? We call it independent judiciary system. हम पढ़ेंगे इसे independent judiciary system. Basically, or in all democratic countries, that it is there that it is said that your judiciary should be absolutely independent. The Supreme Court of India, in fact, one of the very powerful court in the world, right from 1950s, the judiciary has played an important role in intervening protecting the constitution. सबसे बड़ी बात है judiciary second part क्या है? एक तो न्यायालय है, न्याय प्लस आलय, जहां पर न्याय का घर होता है, जहां पर न्याय होता है. दूसरी बात ये देखती है कि judiciary is a very important aspect of the government. Third is it always protecting the constitution. Constitution संविधान को ये प्रोटेक्ट करती है, उसे बचाती है. कि संविधान should not be interfered by anyone, any other person, anything. It should be intact. संविधान intact रहे, उसको किसी भी खतरे से बचा रहे. Right? Now, in this chapter, we will study the role and importance of judiciary. हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे? Role and importance of judiciary. Right? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और जब हम इसको पढ़ लेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? What we will understand the meaning of independent judiciary system. हमें ये पता चलेगा
कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का मीनिंग क्या है। देखिए, ड्यूरिंग द इमरजेंसी और any part, the head of the government is the prime minister, head of the state is the president, right? Mrs. Indira Gandhi declared emergency. Emergency declared with India, right? So that was again they said there was a direct confrontation. Why emergency was declared? Because many times judiciary said declared that Mrs. Indira Gandhi is wrong. प्राइम मिनिस्टर गलत है, उसका ही सहन नहीं हुआ। तो 25 जून आप पढ़ेंगे +2 के अंदर, 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका। दैट वाज आल्सो कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी। सेम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाती है कौन? जुडिशरी, ताकि जुडिशरी के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना कर सके। Am I clear? That's why that our judicial system is absolutely independent. First of all, judges are independent. राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को करवा सकता है कि यस ही इज देयर, उसे वो ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस को, पर चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकता, उसको लगा सकता है, अपॉइंट कर सकता है with the help of the ministers and all other government aspects, but he cannot say no to the chief justice. उसकी मर्जी नहीं है क्या कल आज लगाया कल तो कहते हैं भैया 3 महीने का नोटिस ले लो। He cannot say anything to the chief justice and he is absolutely independent. Got my point? Second part, the role of Indian judiciary in protecting our rights. Muskan, you have got 6 fundamental rights. Or whatever the right, fundamental मौलिक अधिकार है आपके। इन मौलिक अधिकारों को कोई भी, इवन आप भी अपने से छीन नहीं सकते। आपको पता है कहा जाता है कि सुसाइड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉ। अपने आप को भी तंग करना आपके हक में नहीं है, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सो मौलिक अधिकार कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्टिंग अ राइट, आपके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, नंबर 3, द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक बात बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि कल जो कानून बना था आज वो कानून सही है। बात समझ में आ रही है? कल कहा जाता, फॉर एग्जाम्पल, earlier the parents used to say now the girl is 14, 15, 16, get married. Sorry, after parents cannot force a girl or boy to get married, cannot force them. Even it said that there is no punishment, you cannot punish. Okay, हम लगा देते हैं बस, वो तो है कि टीचर है, स्टूडेंट्स है, एक रिलेशन है हमारे अंदर, हम कर देते हैं। But even parents cannot say anything to the wards. जब वो बड़ा हो जाता है cannot say anything. ये तो है कि इंडियन एक सिस्टम है जिसमें पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स का एक हक रहता है। Otherwise you go to foreign countries, they cannot say anything to them. So that is protecting your rights and interpreting constitution। मैंने अभी कहा था कि कानून जो पहले बना है that doesn't mean कि वो कानून अभी लागू हो। For example, 370 article, 35A article, amendment of act, amendments are there। हम कानून के अंदर बदलाव कर सकते हैं as time requires, right? पहले बहुत सारे कानूनों को चेंज कर दिया गया। So interpreting the law in the constitution. Now, the relationship between the judiciary and the parliament. अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? हम दोनों में टकराव है, लेकिन चलिए मानते हैं, जो आप अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर हर वक्त एक टकराव सा रहता है। पार्लियामेंट क्या कहती है कि हम सबसे बड़े हैं, जुडिशरी क्या कहती है आप हमें इंटरफेयर नहीं कर सकते।
आप हमें लागू तो कर सकते हो कि एंड बट यू कैन नॉट इंटरफेयर। तो इसलिए एक ना टकराव सा रहता है जुडिशरी में और पार्लियामेंट में, कौन सीनियर है, राइट। तो आगे चल, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, व्हिच आई टोल्ड यू। देखिए हर वक्त इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, न्याय के अंदर भी पार्शियलिटी होगी। अब देखिए ना, सपोज कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स का गर्ल्स को बहुत प्यार, बेसिकली इट हैपेंस इन साउथ और बंगाल, यहाँ पर भी है, गर्ल चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक दूसरा जो मेल चाइल्ड है ना, वो थोड़ा नेग्लेक्ट फील करता है। कई बार देखा होगा, राइट, पेरेंट्स जो अपनी बेटी को, पापा जो अपने जो गर्ल चाइल्ड है उसको बड़े प्रोटेक्ट से रखते हैं। इससे मेल चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा इंफीरियर फील, वो कभी कभी आउटब्रस्ट हो जाता है, राइट। दैट इज, यदि उस वक्त न्याय ठीक नहीं होगा तो देयर विल बी अ कन्फ्रंटेशन इन द होम आल्सो, घर में भी अशांति है। अननेसेसरी आप क्यों किसी को सपोर्ट करते हैं? जो गलत, कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी कहते हैं जो गलत है वो गलत है, उसको सही नहीं कह सकते, है ना। कई बार होता है ना, घर में भी होता है। तो इसलिए घर, वो तो इंडिया क्या है, घर ही तो है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सब कौन है, पेरेंट्स ही तो है, ये टीचर्स एंड पेरेंट्स आर देयर, राइट। वही कारण है कि इफ देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, न्याय बनेगा, तो ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट न्याय तो है। तो दैट इज, nobody is going to interfere in the judiciary system. Judicial system should be absolutely independent. Are you able to understand मैं समझा रहा हूँ? Yes. Okay. In any society, disputes are bound to arise between individuals. पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ कि लड़ाई तो जहां पर 5 बंदे हैं वहां पर हो नहीं सकता कि वहां पर खटपट ना, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट, all such disputes must be settled by the independent body of accordance with the principles of rule of law. ये सब डिस्प्यूट्स ना ठीक हो जाए। जैसे आपके घर में कानून हो सकता है कि कैसे, यार कोई भी बच्चा जो है शाम के समय 7:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाए, दे शुड कम टू द होम, राइट, हैव योर whatever snacks and go to for the studies. शाम की पढ़ाई शुरू कर दो, होता है हर घर में, कुछ पेरेंट्स सही करते हैं। तो कोई एक आदमी, सपोज बच्चा बार बार लेट आता है, तो उसको तो क्वेश्चन मार्क लगता है ना। तो ये देखो, टू बी सेटल्ड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, उसके हिसाब से उसे डील किया जाना चाहिए, राइट। दिस आइडिया रूल ऑफ लॉ implies that all individuals, rich or poor, men or women, forward or backward caste, are subject to the same law. Okay. अब ये कानून बन रहा है आजकल, एक संविधान एक कानून पर शुरू हो चुका है बनना, कि आप यदि एक देश में रहते हो तो वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये अब आपको पता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, दूसरे जो इंडिविजुअल्स लॉ है, वो लॉ क्या करते हैं, जुडिशरी को उनमें इंटरफेयर करने में मना करते हैं। पहले क्या होता था, पहले बहुत पहले जब भारतवर्ष बन रहा था, कानून था कि अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो कि एक मुस्लिम 3-4 शादियां कर सकता है, उसके पर्सनल लॉ है। अब यू कैन नॉट डू इट। पहले किसी को भी तलाक दे सकता था, अब कैन नॉट डू इट, बिकॉज नाउ जुडिशरी थिंक that law should be equal for everyone, rich or poor, men or women, he or she, backward class or same caste, सबके लिए कानून बराबर, लॉ सबके लिए बराबर। The principal role of judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law.
सुप्रीमेसी, कानून सबसे ऊपर है। जो कानून बनाता है उसको देखा जाए कि जुडिशरी ये देखती है कि कानून जो बना हुआ है वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट्स आपके अधिकारों की रक्षा करती है। सेटल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डियंस, आपके झगड़ों का निपटारा करती है विद द लॉ एंड इंश्योर द डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ डिक्टेटरशिप। ऐसा देखती है कि डेमोक्रेसी ऐसा ना हो कि आप कोई कानून के साथ खिलवाड़ करें और धीरे 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 सभी करने लगे और लॉ एक तरफ हो जाए, डेमोक्रेसी एक तरफ हो जाए और वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाए। वो ड्यूरिंग डिक्टेटरशिप एक आदमी का कानून, डिक्टेशन कहते हैं ना बच्चे वो डिक्टेशन लिखो, टीचर आके कहते हैं ना, तो डिक्टेशन जो लिखा जाता है तो जो वो जो कहती वही तो लिखते हो तुम। आपके स्पेलिंग को ठीक करने के लिए डिक्टेशन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता छोटी क्लासेस में? तो डिक्टेशन का मतलब डिक्टेशन से डिक्टेटर हुआ। वो जो कहता है उसको आपको मानना होगा। यू हैव टू अबाइड बाय व्हाटएवर शी इज सेइंग और ही इज सेइंग टू यू। In order to be able to do all this, it is necessary that the judiciary is to independent of any political pressure. Judiciary should be independent from any political pressure. आपके ऊपर कोई political pressure नहीं आना चाहिए। Suppose you are unable to do something good in a political pressure, then judiciary is there. Suppose what is there? One is lower court, one is session court, one is high court, one is supreme court. और सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू होता है। वो रिव्यू पे 2-3 बार रिव्यू दे सकते हैं कि आपने जो फैसला दिया है उसको दोबारा उसकी जांच की जाए। तो इसका मतलब क्या है कि कानून जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है आपके राइट्स को देखने के लिए और आपके ऊपर कोई अन्याय ना हो इससे जांच। Am I clear? 100%? Fine. Next point is independent judicial system. The other organ of the government, like executive and legislature, must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that is unable to do justice. मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि पहले बार रूल एंड रेगुलेशन जुडिशरी जो है सबको देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, then executive, then judiciary. But let me tell you one thing. After some time, going some way hand in hand, judiciary separate itself. Judiciary अपने आप को अलग कर लेती है, क्योंकि यदि आपके साथ वो चलेगी ना तो उसके अंदर आपके प्रति एक सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगा। आप जो करोगे वो कहेगा वो सही कर रहा है। तो जुडिशरी क्या है, वो सेपरेट हो जाती है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये हो सकता है साथ साथ चले, पर आखिर में जुडिशरी कह देती है भैया मैं अलग हूँ क्योंकि मुझे न्याय करना है। चाहे आप में कोई भी गलती करेगा मुझे उसको देखना है, सो दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। आपको पता है ना, if you go to तिहाड़, if you go to see the तिहाड़ जेल एंड ऑल, कई IAS ऑफिसर्स, ये जो आपके चौटाला है इसको अभी भी जेल हुई। ओम प्रकाश चौटाला ही है शायद उसका नाम, चौटाला जो भी है चौटाला, कई मिनिस्टर्स उनको जेल हुई। आप यदि तिहाड़ जेल में देखेंगे कई IAS ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स आर आल्सो इन जेल, and even and in some type of they have given their judgment against the judge also. Judges के अगेंस्ट भी, मद्रास हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी, जज के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई उनके अपने लोगों के अगेंस्ट। जो our Indian judicial system is absolutely independent, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इवन राष्ट्रपति भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता। Am I clear? Next,
The other organs, the government should not interfere. बार बार मैं देखो ये कह और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ, should not interfere with the decision of the judiciary. जुडिशरी के डिसीजन के अंदर वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते. तभी तो जुडिशरी से बहुत लोग डरते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट. थर्ड वन, judges must be able to perform their function without fear of favor. जजेस जो हैं वो किसी बिना डर के, मैंने आपको कहा था कि मिसेस इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट आया था कि ये जो मिसेस इंदिरा गांधी है ना, इनकी जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है. मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था वो इनवैलिड है. शी इज नॉट फिट फॉर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. उस बंदे में कोई डर रहा होगा जिसने जजमेंट दिया होगा? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो कह रहा है वो बंदा. So that is, judges must be able to perform their function without fear or favor. उनको किसी को फेवर भी नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का भी फेवर नहीं चाहिए, किसी होम मिनिस्टर का फेवर नहीं चाहिए, किसी मिनिस्टर का फेवर नहीं चाहिए, राइट? और वो अपना जो काम है बिना किसी फियर और फेवर के कर सके. दैट इज व्हाई our judgment, our judiciary should be absolutely free from any type of fear. No interference from any side, maybe the home minister, maybe the prime minister. They are working as a free of any fear. That is why independent judicial system is very important in basically in a democratic country. प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर जुडिशरी बिल्कुल आजाद होना चाहिए. Am I clear? Yes. Fine. Now, independence of judiciary does not imply arbitrariness or absence of accountability. क्या होता है कि आप कुछ भी करते हो, you should be accountable, right? Suppose for example, the parents ने आपको पॉकेट मनी दी है और कहा है कि आप इन चीजों से ये चीज खरीदना, ये चीज आपकी है. तो यू आर अकाउंटेबल. आप जो काम कर रहे हो उसके आप अकाउंटेबल, आप उसकी जिम्मेवारी लो कि यस मैंने ये किया है. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है, आपको पेरेंट्स सब कुछ देते हैं, तो यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर योर स्टडीज. ये है अकाउंटिंग. मैं जो करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, उसका मैं अकाउंटेबल हूँ. मैं ये पढ़ूं ही ना, पढ़ के ही ना आऊं तो मैं क्या पढ़ूंगा? So I am accountable for my own subject, but I am not accountable for the physics, chemistry, and bio. That is not my subject. Yeah, I am accountable for my subject. That's not. You are accountable. Judiciary is a part of the democratic political structure. Judiciary जो है part of structure. हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसका अकाउंटेबल है, राइट? सो इसका पार्ट है ऑफ द कंट्री. इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का अकाउंटेबल. संविधान कल पूछ सकता है कि जुडिशरी क्या करती रही, सोती रही क्या जब ये इतनी सारी घटनाएं घट गई, राइट? So, to the democratic tradition and the people of the country, how can an independent judiciary be provided and protected? This is the question. There are two questions. Please, मैं आपको देखो ये देखो. How can the independence of judiciary be provided and protected? Independent judicial system को आप कैसे protect करो? हम ये कहते हैं मुस्कान तुम बहुत अच्छी पढ़ती हो. अब कौन कैसे देखा जाएगा कि तुम बहुत अच्छी पढ़ती हो?
कैसे पता चलेगा? तुम्हारा रिजल्ट कार्ड से पता चलेगा। अच्छा, रिजल्ट कार्ड में आपने 90 90 90 90 90% 98% 99%, और कोई आके कहे कि मुस्कान हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप चुप। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको आप बता ही नहीं पा रहे हो, तू कह सकती है 99% कैसे आया? बात समझ में आ रही है आपको? You are accountable and not you are accountable. Your teachers are accountable. How you give this type of marks? ये इस बच्ची को तो ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, and she is getting 90% in social sciences. How could be possible? या तो उसने नकल मार के पास किया, नकल मारा है तो मारा कैसे नकल उसने? ऐसे भी हो सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। और अरे ये तो सिंपल। अब मैं आपको पूछूं मोदी कौन है? इतना भी इजी नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो? हमें नाउ मैंने बार-बार आपसे पूछता हूँ, एम आई क्लियर? इस इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम कोई करके कैसा मुस्कान, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम? या तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैंने पढ़ाया नहीं या तुमने पढ़ा। So this is the answer. How can the independence of judiciary be provided and protected? इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? भैया तुम तो सब कुछ दे दिया, तुम प्रोटेक्ट भी तो करोगे। इसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंसान ही तो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? और एक और क्वेश्चन, वाई, यहाँ पे लिख लो, वाई इंडिपेंडेंट, ऊपर लिख लिया करो, ये ना सब आपके लिए ही है। ये जो ब्लैंक पेज है ना, स्पेस है, ये आपके नोट्स के लिए है, राइट? सो another one question is why independent judiciary is very important for a democratic country, or कोई भी क्वेश्चन, why there should be an independent judicial system, number one. Number two question, how can the independence of judiciary be provided and protected? ओके, मैं हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद टाइम हो जाएगा 11:40, ओके? सही है।